तेहरान पर इजराइल की स्ट्राइक की खबर बताते हैं आपको। कई इलाकों में बमबारी की गई है। इजराइल लगातार ईरान के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ ईरान का एक्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में भड़की जंग का आज 10वां दिन है। भड़की जंग का फिर से बता दें आपको, आज 10वां दिन है। 10 दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके जिस जंग की शुरुआत की थी वो अब बहुत भीषण हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि सुप्रीम लीडर खमेनेई के खात्मे के बाद ईरान घुटने पर आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये देखें आप, उसका ठीक उल्टा हुआ। ईरान और ज्यादा हमलावर हो गया है। मिसाइल, अभी जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, मिसाइल पर क्या लिखा था? लिखा था इजराइल पर मुस्तफा खमेनेई का नाम लिखा हुआ था। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल हमले तेज किए। ये देखिए, खमेनेई का नाम लिखा हुआ, मिसाइल पर लिखा है मुस्तफा खमेनेई, जो कि नए ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। ये देखिए, मिसाइल के ऊपर बाकायदा उनका नाम लिखा गया है और इस तरह से लगातार हमले दर हमले किए जा रहे हैं। मिसाइल पर फिर से दिखा देते हैं आपको, मिसाइल पर लिखा है मुज्तबा खमेनेई का नाम। आपको बता दें, मुज्तबा खमेनेई अयतुल्लाह खमेनेई के दूसरे बेटे, जिनको अब ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, और उनका नाम इस तरह से मिसाइल पर लिख करके डिस्प्ले करना, यह अपने आप में बताता है ईरान के इरादे क्या हैं। ईरान ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था, चाहे कुछ हो जाए, अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान घुटने नहीं टेकेगा। उसी की बानगी ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अयतुल्लाह मुज्तबा का नाम लिख करके बाकायदा मिसाइल को यहां सामने पेश किया गया है। आपको साथ में ये भी बता दूं कि मिसाइल का ऐसा जखीरा है ईरान के पास, जो ईरान दावे कर रहा है वो लाखों में है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बाबत ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका की जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ, उस पर जवाब दिए जा रहा है। फिर से देखें इस तस्वीर को, टेलीविजन स्क्रीन पर अपने हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मिसाइल पर मुज्तबा खमेनेई का नाम लिखा हुआ है। इस वक्त लोकसभा में डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं। Including at the leadership level in Iran, as well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. It is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Chairman Sir, given the gravity of the situation, the Cabinet Committee on Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in this country. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Chairman Sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that in fact the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected and in some cases have come to a halt. We therefore reiterated our call on 3 March for dialogue and diplomacy and spoke up for an early end to the conflict. I'm
confident, sir, that the entire House joins me in expressing our sorrow at the loss of it. Honorable Chairman, sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman, sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars. आप लोगों से आग्रह है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी सवाल का जवाब सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जी दे रहे हैं। अगर आपकी चिंता है कि भारत के लोग गल्फ में हैं, भारत के लोग ईरान में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो क्या कार्रवाई सरकार कर रही, आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है, आपके इशूज पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सदन को कृपया सुचारू रूप से चलने दें। आप सुनिए, माननीय विदेश मंत्री जी जो आप सवाल को उठाना चाहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, पहले से प्ले कार्ड लेके आए हैं। ये प्ले कार्ड लेके क्यों आए? कई बार अध्यक्ष जी ने कहा प्ले कार्ड लेकर के सदन में नहीं आया जा सकता, फिर भी आप तैयारी के साथ कि सदन को नहीं चलने देना। माननीय विदेश मंत्री। Chairman, sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for US dollars 200 billion almost annually of trade. The House is also aware that in the last decade there have been significant investments from the region into the Indian economy. Therefore, the serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are indeed serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know, sir, that the House joins me in condoling the deaths. Honorable Chairman, sir, Government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2025. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. Those already resident there were urged to register with the embassy, exercise due caution, and monitor embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14 January, reiterating the advice to avoid travel in even stronger. The Directorate General of Shipping Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 13 January for Indian seafarers, asking them to follow embassy advisories and avoid unnecessary movement of ships. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. Chairman, sir, reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued an advisory on 14 February urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 helplines. This was again reiterated in very strong terms through another advisory on 23 February. Some heeded these advisories and have left the country. However, many others have disregarded them and remain in Iran. We are also in touch with fishermen who operate out of Iran. This, sir, was the situation till 28 February 2026.
Honorable Chairman, sir, once the conflict commenced, the Indian Embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3 March. Similarly, facilitation was extended to pilgrims who were there in Iran for their internal movement. Indian nationals who were in Iran for business purposes were assisted to cross over to Armenia and to return home. The embassy in Tehran remains fully operational, I should say, in fact, on the highest alert. They are totally committed to supporting the Indian community in this difficult situation and in assisting Indian nationals who may wish to cross international borders. Where seafarers are concerned, the Directorate General of Shipping, through an order on 2nd March, constituted a quick response team for immediate response, coordination and support functions. This will function on a 24/7 basis. Honorable Chairman, sir, I would like to inform you that every Indian embassy in the region has similarly issued advisories. This is so with Israel, UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Iraq. Many of them did so on the 20th of February. Israel did it again on the 1st of March. Many of them again in the Gulf did it on the 5th of March. Saudi Arabia did it on the 8th of March. So this has been a continuous exercise. The MEA has set up a dedicated special control room to monitor the situation and respond to queries from those affected as well as their families. Our last update was issued on the 7th of March. Chairman, sir, I would like to inform the House through you that our diplomats are working hard to assist standard transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, for the return of Indian passengers. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so as a result. So, the Ministry of Civil Aviation has also put out figures for the last 3 days. On the 7th of March, there were a total of 51 inbound flights operated by Indian carriers, 49 on the 8th of March, and there are 50 flights planned for the 9th of March. Chairman, sir, throughout this period, government has maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister has personally spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community will be the priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28th of February and the 5th of March. We will continue this high-level conversations in the coming days. So, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1st of March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. So,
in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavours of our energy enterprises in this volatile situation. Honourable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the three guiding factors of our approach. One, India is in favour of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint and ensuring the safety of civilians. Two, the well-being and security of the Indian community in the region is our overriding priority. We will continue to work with governments of the region towards that end. And three, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I am confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. I would request to my all member of parliament that now you are raising some concern through your play cards. You are raising issue of energy security. You are raising issue of energy security. तो मेरा कहना है कि अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात आपने उठाई है तो माननीय अभी विदेश मंत्री जी ने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सदन के माध्यम से सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है। जहाँ तक भारतीय लोग हैं जो आप कह रहे हैं, इस प्ले कार्ड को दिखा रहे हैं, नीचे रखिए कि जो लोग विदेश में हैं, गल्फ में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, उनको किस तरह से लाया जा रहा है, पूरा डिटेल स्टेटमेंट दिया है। या तो केसी वेणुगोपाल जी, यू हैव नॉट हर्ड व्हाट ही हैज सेड ऑलरेडी foreign minister has issued statements about your all subject. Even you are not satisfied, if you may not be satisfied, you can raise this issue in business advisory committee for more discussion, for more debate. अगर आप इस विषय पे जो उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं चलती। माननीय विदेश मंत्री जी ने कुछ विषय उठाया है। माननीय विदेश मंत्री जी ने अगर सारी बातों का जवाब दिया, आपको कुछ इसमें आगे है तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पे इस पर चर्चा के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन आप सदन को बाधित कर रहे हैं। यू आर नॉट अलाउइंग दैट माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। चेयरमैन सर, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में झांक के देखिए। आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन
करना चाहता हूं और फिर से अनुरोध करता हूं, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। माननीय सदस्यगण, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि आज का जो मोशन आया है वो आपके द्वारा आया है और उसको खुद स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और आज के एजेंडे पे है और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप नहीं, आखिर आपने इस बात को नहीं महसूस किया कि जो आज का एजेंडा है, आज का जो एजेंडा मिस्टर केसी वेणुगोपाल हु है हु हैज गिवन ए नोटिस, यू हैव गिवन ए नोटिस, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट योर अनमेरिड कि किस तरह, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। एक तरफ स्पीकर साहब ने आपकी नोटिस को स्वीकार कर लिया और ये कभी परंपरा नहीं हुई है, पहली बार हो रहा है कि जिस दिन से आपने नोटिस दिया है उन्होंने सदन की कार्रवाई में कहा कि मैं चेयर नहीं करूंगा। उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे जब तक इसका डिसीजन ना हो जाए, जब तक इस पर डिस्कशन ना हो जाए, तब तक वो चेयर नहीं कर रहे हैं और आप उसको चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं चलेगा। ये कैसे होगा कि एक तरफ स्पीकर का इतना हाई मॉरल ग्राउंड हो क्या नॉन, ये आप इवन इट इज योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मिस्टर केसी वेणुगोपाल, आज आपका मोशन है, अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो इस एजेंडे पे मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, एक तरफ आप कहते बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ आप कहते बोलने नहीं दिया, मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। या तो आप कहिए कि हमको नहीं बोलना है, या तो आपको, जब आज आपका मोशन है, आपको सदन में मैं आपको अलाउ करना चाहता हूं। नहीं, आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, आपका विषय है। मैं खुद अलाउ करने के लिए, तो आप खुद बोलना भी नहीं चाहते। सदन को जिस समय चाहेंगे जिस तरह से चलाएंगे। आपको चेयर अलाउ कर रहा है, चेयर आपको अलाउ कर रहा है। एक तरफ आपने, ये कोई सरकार के खिलाफ मोशन नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। आपने अपने हाउस के कस्टोडियन के खिलाफ, जिसके लिए इसके पहले मैं केसी वेणुगोपाल जी आपको कह देना चाहता हूँ, खुद आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कोई विषय जो है, ये विषय ऐसा है कि इसमें इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदा सहता पे उंगली नहीं उठा सकते, चाहे हम अध्यक्ष से सहमत हो या न सहमत हो। अध्यक्ष को उस कठिन स्थिति में काम करना पड़ता है और पक्षपात की भावना की विकट हो जाती है अध्यक्ष को उन सब से। लेकिन इसके बावजूद भी अध्यक्ष पे अगर उनकी सदा सहता पे उठाते हैं तो ये आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये खुद उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा। इसके बावजूद भी आप ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो इस प्रस्ताव पे मैं चर्चा करने की अनुमति दे रहा हूं। आप कृपया अपने जगह पे बैठे, आप कृपया क्या अपना जो आपका संकल्प है, जो आपका अपना संकल्प है, प्रस्ताव है, उसको नहीं उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं। जो आज का एजेंडा है उस पर आप नहीं बोलना चाहते। आखिर पूरे देश में ये एजेंडा आज पे है, आज का एजेंडा आपका है। इस एजेंडे पे आप अपने रिजोल्यूशन पे, जिसको आज नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया, चेयर आपको अनुमति दे रही। आखिर मिस्टर केसी वेणुगोपाल जी, आप अपने लोगों को कहिए, आप अपने लोगों को कहिए कि चेयर आपको अनुमति देने जा रही है। मैं पूरे जितना विस्तार से आप बोलना चाहेंगे, जितना विस्तार से आप बोलना चाहेंगे आप बोलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप एक तरफ ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए। आज वो एजेंडे पे है और अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और इसके बावजूद भी आप लोग इस सदन में दूसरा विषय लेकर के आ गए। अगर आप नहीं चाहते हैं अपना संकल्प उठाना, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सब लोगों से मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
मंत्री ये क्या कर रहे हैं? मैंने आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं, मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं, और देश भी चाहता है कि अगर विपक्ष ने एक रिजोल्यूशन में आपने अपने स्पीकर के खिलाफ अगर कोई टेक्स्ट दिया है, अगर आप उनके खिलाफ अविश्वास लाना चाहते हैं तो आप इस पर चर्चा करिए। नहीं, आप मोहम्मद जी अंदर, आप अंदर जाइए, मैं चाहता हूं आप लोगों को बुलवाना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं इस पे, तो मैं सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूं। जंग कहां हो रही है, बवाल कहां मचा है, हमने आपको लोकसभा के अंदर की तस्वीरें दिखाई है। देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से जमकर हंगामा हो रहा था लोकसभा के अंदर जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना बयान दिया और उसके बाद भी विपक्ष उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, सदन के अंदर डॉक्टर जयशंकर बयान दे रहे थे। अंकित लगातार डॉक्टर जयशंकर बयान दे रहे थे, जो सवाल विपक्ष ने खड़े किए उन्हीं का जवाब दे रहे थे, और उसके बावजूद इस कदर हंगामा की सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। क्या रणनीति है विपक्ष की? जी बिल्कुल आशीष, देखिए साफ तौर पर जो है विपक्ष का यही कहना है कि यहाँ पर जो है सिर्फ मंत्री के बयान से काम नहीं चलेगा। एक गंभीर मुद्दा है, देश के जो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर जो है क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी की शॉर्टेज की बात आ रही है। हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग उन मिडिल ईस्ट के इलाकों में फंसे हुए हैं जहां पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो उसको लेकर के एक जो है चर्चा होनी चाहिए, भले ही वो शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा होनी जरूरी है। राज्यसभा में हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही मांग की है, और लोकसभा में भी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है बयान दे रहे थे, उस दौरान भी लगातार जो नारेबाजी हो रही थी, वहां जो प्ले कार्ड जिसका जिक्र कर रहे थे जो जगदम्बिका पाल जो चेयर पे बैठे हुए थे, उस पर यही लिखा हुआ था वी वांट डिस्कशन। यानी कि विपक्ष का कहना है कि गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विदेश मंत्री ने राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों जगह आकर के सरकार की जो है जो पूरी एक क्राइसिस रही है मिडिल ईस्ट में, ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यूएस इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के कई जो है क्षेत्रों में जो हवाई हमले किए हैं यूएस के, जहां पर जो एस्टेब्लिशमेंट से, तो उन तमाम अंकित आप नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में खराबी आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी आई है। एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी से रिहायशी इलाकों में वहां पर मिसाइलें गिर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें ऐसी खराबी आई कि रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं, जिसकी वजह से काफी अफरा तफरी हो रही है। फिर से आपको बता देते हैं, अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में खराबी आ गई है। जंग के बीच बड़ी खबर, अमेरिका को नुकसान, अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में खराबी आई है। बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम किस कदर खराब हुआ कि वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी की वजह से रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में काफी नुकसान हो रहा है। ये देखना है, अभी इस बाबत खबर आनी बाकी है कि लोगों की जान की नुकसान हुई कि नहीं। ये देखिए एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी से रिहायशी इलाकों में, ये तस्वीरें सामने, ये देखिए बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी की वजह से इस तरह से मिसाइलें गिर रही हैं वहां पर। ये अमेरिका को काफी बड़ा नुकसान हुआ। देखिए यहां पर किस तरह से यहां पर ये मिसाइल गिरा और उसके बाद वहां पर रिहायशी इलाकों में आग की लपटें ऊपर तक उठती हुई दिख रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की खराबी की वजह से मिसाइलें गिर रही हैं। अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। बहरीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में खराबी आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिफेंस सिस्टम में खराबी, जिसके बाद जो मिसाइलें हैं वो किस तरह से गिर रही हैं। वॉर रूम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी नीरज राजपूत के पास। नीरज बोलें, बताएं इसके बारे में। दरअसल देखिए आशीष, ये जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में है, ये जो अमेरिका है उसने अपने बेस पे लगा रखी थी, और उसके बाद जैसे ये ड्रोन अटैक हुआ वहां पर, तो अपना पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो अमेरिका ने लॉन्च किया, यानी कि उसको एक्टिवेट किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर पाया, मेल फंक्शन हो गया। और ये जो पेट्रियट मिसाइल थी जो कि आसमान में मार गिराने के लिए थी,
ईरान के ड्रोन के लिए, लेकिन वो गिर गई, वहीं पास में जाकर गिर गई। जैसा आपने दिखाया, ट्रेजेक्टरी साफ दिखाई दे रही कि वो ऊंचाई पर जाने के बजाय वो नीचे की तरफ इस तरह से गई और सीधी पास में जाके जो बेस के पास जो रिहायशी इलाके थे वहां जाकर गिर गई है। और आशीष, ये ऐसा लगता है क्योंकि आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि बहरीन में जो रडार सिस्टम था अमेरिका का, उसको तबाह कर दिया था ईरान ने। शायद उस रडार के सिस्टम की वजह से, क्योंकि रडार सिस्टम है नहीं इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के पास, इसलिए ऐसा लगता है कि ये मैल फंक्शन कर गई तो जो अमेरिका की सबसे बड़ी पैट्रियट मिसाइल यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम। आशीष, नीरज, ये बड़ी खबर बताते हुए कि किस तरह से जो इनका अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है वो डैमेज हुआ। नीरज बड़ी खबर बता रहे थे कैसे डैमेज हुआ और कैसे ट्रैजेक्टरी अपने आप तस्वीरों में बता रही है कि ऊपर की जगह नीचे जा रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले उनके जो वहां पर रडार्स लगे थे उनको काफी नुकसान पहुंचाया था।